Good morning, students. Good morning, sir. So we'll start with a new topic, beta. Second year ka. We have done with your current electricity. Now let us try Yes, to sir. start your electromagnetism. Electromagnetism. What is date today? 30. Sure. Start with a new topic, beta. Magnetic effects of current. Very important topic, scoring topic for your mains exam. What do you call that one for NEET examination? और easy topic है, but only little bit of vectors का application याद रखना पड़ेगा इसमें. So let us try to start with the next chapter. Magnetic effects of your current. Magnetic effects of current. Everyone will write the notes along with me. Magnetic effects of your electric current. Electric current. Or we also call this one as of your electromagnetism. Electromagnetism. Okay. See, beta, if I talk about the electric current in a conductor, in the last section, what we have been taken, like say if there is a conductor like this, if there is a conductor like this, in the conductor, you know that there is a flow of a current in this one, and electronic current is in the opposite direction. If this is connected to the positive terminal of a battery, this is connected to the negative terminal of your battery part. Okay, so there is a flow of your electrons from negative terminal. यहाँ से electrons flow हो जाएंगे इस तरह से. So there is a flow of your electrons in the wire like this. So the electrons which have been present in the conductor will be moving in this direction. So the velocity with which they are moving is called as of a drift velocity, and electric current is moving from positive terminal to your negative current. So this is your conventional flow of your current, isn't it? So electric field outside कितनी हो जाएगी? 0. But magnetic field outside will not be equal to 0. इसके पास electric field outside will be equal to 0, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है तो कोई electric field नहीं रहेगी. But magnetic field outside is not equal to 0. ये बाद में पता चला, ये बाद में पता चला right now for the given condition कि magnetic field is existing around this wire. Magnetic field is existing around this wire, and this is a current carrying conductor. This is a current carrying conductor जिसमें current flow हो रहा है I basically. अगर मेरे पास, like say for example, if I'm talking about this conductor right now, okay, अगर ये potential नहीं होता, then this electrical conductor might be what? Electrically neutral, बेटा. ये तो current carrying conductor है. This one is your current carrying conductor. Current carrying conductor. अगर ये external potential नहीं होता, then even though these electrons are moving, it will not constitute the current. It will not constitute the current part of relation. So I can say that first point is very clear for me in my mind, that current carrying conductor is electrically neutral. बोल सकते हैं क्यों? Why it is electrically neutral? Because number of electrons is equals to number of protons. There is no process for the conduction. If number of electrons is equals to number of your protons, then that type of electrical conductors will be neutral. है क्या ना? क्योंकि ये नेगेटिव है पॉजिटिव को खा जा रहा है, and this negative and positive खा जा रहा है, basically the net electric field कितनी हो जाएगी right now? 0. So electric field will be 0 for
me. That means electric field outside this conductor will always be zero, but it is not zero inside. ये बात अपने को याद रख लेना. Electric field outside, electric field outside conductor carrying current is zero. But electric field inside is not zero because we have done that one already in terms of your Ohm's law. So Ohm's law में हम लोग ने already कर चुके हैं. Basically, electric field inside the conductor is not equal to zero because we are having the relation between the electric field and as well as of your current density. So I can say that electric field inside the conductor is not equal to zero. Is this 3 points clear, beta? First one क्या बोल रहे हैं हम लोग देखो. Current carrying conductor is electrically neutral. That means number of electrons is equals to number of protons. And electric field outside the conductor carrying current is how much beta for me? Zero. Whereas inside it is not zero. Inside it is not zero part of relation. ये points अपने को याद रखना है in a current carrying conductor. Okay. चलो. Next one देखो बेटा. The magnetic field produced. Oersted was the first scientist बेटा. उसने क्या बोला कि when he was doing the experiment with this one, by mistake he kept a magnetic needle in this one. एक magnetic needle उसके आसपास से what was being present on the table. When there was a flow of a current in this conductor, this magnetic needle was showing every time the deflection. And when the current was off, again it was coming back to the original position. Again, when the current was reversed, again the deflection was in opposite direction. Yani, as well as increasing the strength of the current in this one, the magnetic needle strength also started moving front and as well as back. When on and off करते गए, तो ये magnetic needle was been showing the deflection. at that time they was not knowing that why this magnetic needle was being flowing. Because this magnetic needle will be showing the deflection if and only if some other magnet is been present here. So यहाँ पर तो कुछ भी magnet नहीं था, but still this magnetic needle was showing the deflection. After a lot series of your experimental verifications, they found that a current carrying wire also produces the magnetic field around it. A small magnetic field is being created around the conductor, and that was the first scientist Oersted was given an explanation for that one experimentally. And after a very long period of time, other scientists like Biot and the another scientist called as of your Savart, who independently has given the experimental proof for this given conditions. Okay. So what is the first conductor beta? A current carrying conductor is electrically neutral. So number of electrons is equals to number of protons. An electric field outside the conductor carrying current is zero, whereas electric field inside is not equal to zero. The magnetic field produced around current carrying conductor. Around current carrying conductor is non-zero. And magnetic field B bar, on axis of conductor is found to be zero. But any other point inside the conductor, not on the axis, magnetic field is present. That means it is not equal to zero. So magnetic field is being present, isn't it? So what I can say ultimately, magnetic field inside a conductor is not equal to zero. This is the first point which I got from the statement. And magnetic field along the axis of conductor. Axis of your conductor कितना हो जाएगा? Zero हो जाएगा. This is your zero. यानी इस कंडक्टर का अगर मैं एक्सेस ले रहा हूं इस तरह से, इसका एक्सेस है मान के चलो, इस एक्सेस पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, वो जीरो बन जाएगी. On the axis it is zero. Leaving the axis, any other point it is not equal to zero. But any other point inside the conductor, not on the axis, the magnetic field is not zero. So I can say that, but any other point inside the conductor, not on the axis,
not on the axis. Magnetic field is not equal to 0. So ये था अपना फोर्थ पॉइंट. एक बार समरीली देख लो, कुछ समझ में आया? अगर नहीं आया तो प्लीज लेट मी नो. आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट वंस अगेन फॉर दिस गिवन कंडीशंस. एक तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज हाउ मच वर्मी 0. Magnetic field on inside is 0. Magnetic field inside is not equal to 0, but any other point inside the conductor not on the axis, magnetic field is been present. Magnetic field is been present. Is that point clear for everyone? Is that point clear for everyone? Yes, sir. Okay, sure. Next point. Point number 5. According to the scientist, according to Oersted, according to Oersted, he was a science teacher in the lab, in the what you call that university beta. According to your Oersted's experiment, according to your Oersted's experiment, there exists a magnetic field. There exists a magnetic field in the space around current carrying conductor. Around current carrying conductor. Okay. Oersted was the first scientist. This was the experiment which has been done by the Oersted. But a poor experiment on the table tha. On the table there was a conductor and he was been flowing the current in this one, and by mistake when magnetic middle was being present, it started showing the deflection. Even though there was no other magnet present within the vicinity, a magnet started showing the deflection, isn't it? So then after a series of experiments, they could able to conclude that whenever there is a flow of a current in a conductor, whenever there is a flow of a current in a conductor, because of this flow of a current, a magnetic field is being created around it. A magnetic field is being created around this conductor in the concentric circles. In the concentric circles part of relation, that experimental condition was being given by a scientist called as of what? Oersted. So according to an Oersted's experiment, there exists a magnetic field in the space around your current carrying conductor. Is that point clear for everyone? Yes, sir. Chalo. Next point, beta. This magnetic field, whatever they got, this magnetic field around current carrying conductor, around your current carrying conductor is non-uniform. It is your non-uniform and non-conservative. Non-conservative यानी constant नहीं है, continuously change हो रहा है. So whatever the magnetic field, they found that क्या ये constant था या conserve हो रहा है, तो they found that it is not a uniform magnetic field and it is also not conserved. यानी अगर distance बढ़ रहा है कम हो रहा है तो magnetic field भी बढ़ रही है कम हो रही थी. That is the reason it was not uniform and also non-conservative, part of relation. Is that clear for everyone? Is that clear for everyone? Yes, sir. So this was the sum of the points which you should remember in your magnetic field of your current carrying conductor part of relation. So whenever there is a current carrying conductor part of relation right now, there is always a magnetic field around it. There is always a magnetic field around it. So I can say ultimately that moving charges, I can say that moving charges produce an magnetic field, produces a magnetic field, or I can say magnetic force. That is nothing but of your B bar, and it is a vector quantity beta. B bar is a vector quantity. It is a vector quantity, and SI unit of this one is Tesla. SI unit is across a name of a scientist called as of your Nikola Tesla. So the unit of this one is nothing but of your Tesla. And the CGS unit is Gauss. CGS unit is what? Gauss. And relation between them is 1 Tesla is equals to 10 to the power of 4 Gauss. 10 to the power of 4 Gauss. 1 Tesla is equals to how much beta? 10 to the power of your Gauss part of relation. Is that clear for everyone? So what is the given condition I told you?
moving charges produces what me for me? A magnetic field or a magnetic force. That is nothing but of your B bar. That is nothing but of your B bar part affiliation. Is it clear for everyone? Moving charges produces the magnetic field and magnetic force. B bar is a vector quantity. SI unit is a Tesla. CGS unit is a Gauss. And 1 Tesla is equals to how much beta? 10 to the power of your 4 Gauss. 1 Tesla is equals to 10 to the power of your 4 Gauss part affiliation. I hope everyone is clear about this introduction point of everyone. So what is the point we'll be telling in this one? A current carrying conductor is electrically neutral. So number of electrons is equals to number of protons. This is a point which you need to remember it. Very important. Electric field outside the conductor is always zero, but electric field inside the conductor is not equal to zero. The magnetic field produced around the current carrying conductor is non-zero, and magnetic field on the axis of a conductor is zero, but any other point inside the conductor not on the axis, magnetic field is not equal to zero. That all summary I have written in these 3 boxes. Then according to the Oersted, there exists a magnetic field in the space around the current carrying conductor, and it is non-uniform and non-conservative. So I can say ultimately moving charges will always produce the magnetic field or magnetic force. It is a vector quantity, and SI unit is Tesla, CGS unit is Gauss, and the relation between them is 1 Tesla is equals to 10 to the power of your Gauss part of relation. So that was about your basic condition. Now see, if I'm going for the calculation of this magnetic field, अब तो ये तो Oersted ने बोल दिया कि magnetic field create हो रही है, कितना B value, अब create हो रही है तो कितना create हो रही है, यानी B value तो create हो गई, तो how do you calculate this B value? Isn't it? So mathematically, how do you calculate this B value? And what is the direction? अभी तो हम लोग वेक्टर बोल रहे हैं, तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो what is the direction of this B bar? This was the 2 big questions which was being present in front of your scientist at that time. क्योंकि ऑयस्टेड ने खाली इतना बोल देकर छोड़ दिया कि कभी भी करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। अरे बाबा, अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है तो कितना क्रिएट हो रहा है, तो बी वैल्यू कितना बढ़ रहा है या कितना कम हो रहा है, तो उसके निकालने का कोई मेथड होना चाहिए ना। तो उसके लिए फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, बायोट-सावर्ट्स लॉ बोलते हैं, जो 2 डिफरेंट साइंटिस्ट है बेसिकली, एक स्पेनिश और एक फ्रेंच पार्ट एफिलिएशन में। तो उन दोनों ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट कर दिया और उसको कैलकुलेट करने का डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बता दिया। उसके बाद एम्पियर आया, एम्पियर आल्सो टोल्ड हिज ओन वे टू कैलकुलेट द व्हाट यू कॉल दैट वन मैग्नीट्यूड ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑयस्टेड ने खाली इतना बताया था कि करंट कैरिंग वायर विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज नथिंग बट योर बी बार। अब ये बी बार को निकालने के लिए the different scientists did n number of experiment after number of years, like say 50-60 साल इनके बोलने के बाद there have been come other 2 scientists like Biot and Savoy. They told that we can calculate this magnetic field by so and so method. So that what exactly we are trying to calculate right now. तो मेरा क्वेश्चन क्या था right now? Next one is calculation of magnetic field. Calculation of your magnetic field. Calculation of your magnetic field. So हम लोग calculation of a magnetic field अपने syllabus में 2 methods से पढ़ते हैं बेटा. The first one is known as of your Biot-Savart's law. T यहाँ पर silent है बेटा. So Biot-Savart's law. ये हो गया Biot-Savart's law. And next one is nothing but of your Ampere's circuital law. Ampere's circuital law. Okay, these are the 2 methods, very important बेटा. पूरा चैप्टर बस यही 2 लॉस पे रोटेट होते जाएगा. सो मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए हम लोग बायोट-सावर्ट्स लॉ बोलते हैं. इसका प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि अपने को सिलेबस में नहीं है, तो उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है अपने को. सो द प्रूफ ऑफ दिस वन इज नॉट रिक्वायर्ड. खाली हम लोग उनका स्टेटमेंट लेके हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे. सो बिफोर वी गो फॉर दिस वन, लेट अस ट्राई टू रिवाइज आवर बेसिक्स बेटा. थोड़ा बेसिक्स यहाँ पर अपने रिवाइज करते हैं. बेसिक्स ऑफ योर वेक्टर्स पार्ट डेफिनेशन. अपने को क्रॉस प्रोडक्ट मालूम है. वी नो अबाउट योर क्रॉस प्रोडक्ट बेटा. क्रॉस प्रोडक्ट याद है बोल गया सभी लोग? फॉर्मूला बता सकता है कोई जल्दी से? व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है बेटा? A cross B is equals to AB sin theta. A bar cross B bar is equals to mod A mod B into sin theta followed by the direction. या रिजल्टेंट ले सकता हूं मैं यहाँ पर. देखो ये हो गया वेक्टर A बार और ये हो गया वेक्टर B बार. इसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे बेटा? आई एम गोइंग फ्रॉम योर A बार टू B बार लाइक दिस. कोई बता सकता है इसका डायरेक्शन कौन से रूल से निकालता है? याद है किसी को? डायरेक्शन इज गिवन बाय याद है राइट हैंड थंब रूल. टेक योर राइट हैंड
Everyone, take your right hand, keep all the fingers in the direction of A bar and move from A to B. Move from A to B. The extended thumb will give me the direction of A bar. तो ये आ जाएगा बाहर, बाहर मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, तो बोर्ड के ऊपर हम लोग ड्रॉ करेंगे इस तरह से. So if I'm going from A to B, the resultant is nothing but of your C bar, and this C bar is equals to your A bar cross of your B bar. That means C bar is perpendicular to A bar and as well as of your B bar. याद है सभी को? याद आया? डायरेक्शन निकालने का मेथड क्या है? राइट हैंड थंब रूल. take your right hand part affiliation and move your fingers from the vector A bar to B bar. The extended thumb will give me the direction. The extended thumb will give me the direction of your resultant. याद आया सभी को? याद आया? Yes sir. याद नहीं है? याद है सर, पहले से याद है. अगर ऐसा होता तो मान के चलो ये वेक्टर ए बार है और ये वेक्टर बी बार है. अब मैं जा रहा हूं बी से ये तक इस तरह से, मेकिंग एन एंगल थीटा. तो इसका रिजल्टेंट कहां पर आएगा बताओ? टेक योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी बार. बी से ए को आओ इस डायरेक्शन में, एरो के मार्क में डायरेक्शन. तो थंब कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? इनवर्ड जा रहा है, इनसाइड जा रहा है. तो मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूं. ये हो गया सी बार. तो यहाँ पर सी बार हो गया कितना बेटा? बी बार क्रॉस ऑफ योर ए बार. क्या ये दोनों इक्वल है बेटा? क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं सर. तो हाउ डू यू राइट द रिलेशन? A bar cross B bar is not equal to A bar cross B bar is not equal to B bar cross A bar. क्योंकि इसका डायरेक्शन ऊपर है, इसका डायरेक्शन डिफरेंट है, क्योंकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है ना बेटा. So direction of this one is in above and direction of this one is in the below. So A bar cross B bar is not equal to B bar cross A bar, but A bar cross B bar will be equal to minus of B bar cross A bar. Yes sir, yes sir. Isn't it? It can be equal. It can be equal part of relation. तो इसका डायरेक्शन निकालना अपने को. So डायरेक्शन याद है ना सभी को? एक बार याद रख लो. बेसिकली पूरा डायरेक्शन हम लोग से निकालेंगे. यहाँ पर A बार क्रॉस B बार से निकालेंगे. बाकी का कोई भी रूल हम लोग नहीं पढ़ेंगे. यहाँ पर राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, पाम रूल वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ेंगे. मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन हम लोग डायरेक्शन कभी भी निकालेंगे तो यही वेक्टर के मेथड में निकालेंगे. इट विल बी मोर इजी फॉर अस विदाउट एनी कंफ्यूजन. ठीक है ना? एक बार डायरेक्शन निकाल लो. फिर से एक बार आप लोग सभी लोग अपना राइट हैंड लो. First one, you go from your A bar to B bar. If I'm going from A bar to B bar, the extended thumb is coming in the outward direction. The extended thumb is coming in the outward direction. यहाँ पर जा रहा हूँ A bar से B bar, तो outward direction में वेक्टर ड्रॉ नहीं कर सकता, इसीलिए हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे हैं? ऊपर के डायरेक्शन में. If I'm coming from your B bar to A bar, take your right hand and curl the fingers from your B bar to your A bar. The resultant of this one is coming in this direction, beta. Downward direction. Is that clear for everyone? Yes sir. Is it clear for everyone? Yes sir. सर हाँ बेटा, इसको वैसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, वो एरो के जैसा, मतलब आउटवर्ड एरो, इनवर्ड एरो, मतलब हाँ, पॉइंट और क्रॉस. खाली अभी वेक्टर्स पढ़ा रहा हूँ मैं, वो अभी आपको बोल देता हूँ बेसिकली. जी हाँ सर, जी हाँ. तो इनवर्ड कभी भी लिखते हैं बेटा फिजिक्स में हम लोग. यहाँ पर यहाँ से देखो, इनवर्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इनवर्ड डायरेक्शन. इनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से इस तरह से. ओके. एंड आउटवर्ड डायरेक्शन हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से. तो कभी भी यहां से अगर हम लोग डॉट डाल के ऐसा डाले तो इसका मतलब क्या? आउटवर्ड. अगर क्रॉस मार के ऐसा क्लोज कर दिए, सो दैट विल बी योर इनवर्ड पार्ट ऑफ रिलेशन. क्लियर है सभी को? यस सर. ठीक है ना? यस सर, यस सर. चलो अब सभी लोग अपना दिमाग लगाओ. यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए. प्रैक्टिस ऑफ योर डायरेक्शन. एवरीवन स्टार्ट डूइंग इट आउट बेटा. कोई भी मिस नहीं करेगा. अगर ये समझ में नहीं आया तो कुछ भी टॉपिक समझ में नहीं आता, नहीं आ रहा तो 100 बार मुझे रोको, अपना डाउट क्लैरिफाई करो, देन यू ट्राई टू गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. अगर डायरेक्शन समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर आसान. अगर डायरेक्शन समझ में नहीं आया तो आप कितना भी कर लो, डायरेक्शन प्रॉब्लम्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. आपको आंसर आ जाएगा, लेकिन आंसर कभी भी आपको डायरेक्शन के साथ रहेगा तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी. अगर समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को आप लोग बात करो. यू ट्राई टू रेक्टिफाई योर डाउट एंड रेक्टिफाई हाउ टू प्रैक्टिस सच टाइप ऑफ योर क्वेश्चंस. उससे पहले हम लोग पहले डायरेक्शंस देख लेते हैं बेटा. हम लोग को डायरेक्शंस मालूम है फिजिक्स में. ये डायरेक्शन है मेरे पास ईस्ट, ये डायरेक्शन है मेरे पास वेस्ट, ये है डायरेक्शन ऑफ योर नॉर्थ, एंड दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर साउथ. करेक्ट?
इज इट करेक्ट? चलो यस फर्स्ट सर। वन। अब देखो ये एक y एक्सिस है, एक y एक्सिस है, और ये है मेरे पास x एक्सिस। सोचो अच्छा तरह से सोचो एंड देन यू गिव। मेरे पास एक वेक्टर है बेटा यहां से यहां तक, ये है वेक्टर a बार, ये है वेक्टर a बार। क्लियर है सभी को? ठीक है, बोलना बोलना, बात करना मेरे से इस टॉपिक के लिए, Yes, नहीं sir. तो जाएगा। यस सर, यस सर। यहाँ पर देखो क्या है, ये क्रॉस है क्या पूछ रहा था मैं तुम्हारा? और ये हो गया b बार। उसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? क्रॉस ऑफ b मतलब क्या? b वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, b वेक्टर है। क्रॉस मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनसाइड। समझ में आया? ये Yes, वेक्टर sir. मुझे इनसाइड ड्रॉ करना है बेटा। जी हाँ इनसाइड सर। नॉट ड्रॉ करके मैंने ऐसा क्रॉस मार दिया। क्रॉस मार दिया मतलब बी वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में? इसके अंदर है मतलब। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? ये देखो बेटा वेक्टर ए बार है, ऐसा वेक्टर ए बार है ना बेटा, ये वेक्टर ए बार है, एक वेक्टर ऐसा अंदर है बी बार। ओके ना, इसके अंदर है, ये अंदर एग्जैक्टली अंदर। तो बोर्ड बी स्क्रीन के अंदर तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता ना, तो इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसा क्रॉस कर दिया। तो ये हो गया बी वेक्टर और ये हो गया वेक्टर ए बार। बात समझ में आई? ए कैसे लिखा मैंने? तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वेक्टर वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अंदर जा रहा है। जी क्लियर हाँ है सभी सर। को? यस सर, यस सर। अब इसका डायरेक्शन बताओ, अब इसका डायरेक्शन बताओ, ए बार से बी बार, ए बार से बी बार। चलो यार डायरेक्शन बताओ जल्दी से, कौन सी डायरेक्शन में? टेक योर राइट हैंड, टेक योर राइट हैंड एंड कीप इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार, और ए वेक्टर से बी वेक्टर को जाओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, वेरी गुड, ये आ जाएगा यहां पर। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट, दैट इज नथिंग बट सी बार। आया सभी को? यस सर। सी बार इज इक्वल्स टू ए बार क्रॉस बी बार। सभी लोग देखो बेटा, टेक योर राइट हैंड, मूव द वेक्टर फ्रॉम ए बार टू बी बार। तो थंब कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा फर्स्ट है। जा रहा है क्वाड्रेंट कि में नहीं जा जा रहा, रहा? जा रहा सर, जा रहा। आया डायरेक्शन निकालना सभी को? यस सर। नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? आया? मेरे को आया सर। सर एक और एग्जांपल करवाइए ना। और एग्जांपल कराता हूं मैं, बहुत एग्जांपल्स कराता हूं, आप लोग परफेक्ट हो तक ही मैं दूसरा टॉपिक जाता हूं, जब तक नहीं जाता क्योंकि ये डायरेक्शन समझ में नहीं आया तो मुश्किल हो जाता है। एक मिनट सुनाई दे रही? चलो एग्जांपल नंबर 2 कर लेते हैं। आई एम ऑडिबल बेटा? Yes, sir. चलो सोच समझ के बोलो, सोच समझ के बोलो। ये हो गया मेरा y एक्सिस, ये हो गया मेरा x एक्सिस, ठीक है। अब देखो मैं दे रहा हूं यहाँ पर, ये एक वेक्टर है, यहां से यहां तक एक वेक्टर है, मान के चलो b बार, और इसके अंदर एक वेक्टर है, मान के चलो ऐसा क्रॉस दे देता हूं मैं आपको, डायरेक्शन दूसरे से लिखा दूं तो इसको डायरेक्शन मैं किससे दूं, ऑड पेपर ले लेते या तो ये हो गया ऐसा क्रॉस इसके अंदर, और ये हो गया वेक्टर ए बार। इसका मतलब क्या, कोई बता समझा सकता है मुझे? ए बार अंदर के साइड है सर, और बी बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सर। वेरी गुड। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया माइनस ऑफ एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया माइनस ऑफ ई और वाई एक्सिस, वाई डैश रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो बेटा वेक्टर अंदर है, वेक्टर अंदर है, अंदर है मतलब ऐसा अंदर, इसके अंदर ऐसा ड्रॉ करना है मुझे, ऐसा अंदर ड्रॉ करना है। तो अब ये अंदर नहीं ड्रॉ कर रहा तो समझ में नहीं आता, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर, ये बार को ऐसे मैंने अंदर ड्रॉ कर दिया, और ये हो गया वेक्टर बी बार। ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा बताओ? ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब टेक योर फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता सर। क्रॉस के डायरेक्शन में रखो, और क्रॉस के डायरेक्शन में रखते हुए फिंगर्स को पूरा बी बार को रोटेट करो, बी बार के डायरेक्शन में रोटेट करो। तो थंब कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? देखो थंब कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा सर। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ऑब्वियसली आया सभी को, एक बार देख लो, ट्राई कर लो। टेक द Yes, फिंगर, sir.
टेक द फिंगर्स इन द ए बार एंड रोटेट फ्रॉम ए बार टू बी बार के पास आ जाओ। सर सभी लोग लिखे फिंगर्स, यू कीप द फिंगर्स इन द ए बार, इनटू द बोर्ड रख लो यार, इनटू द पेपर रख दो, इनटू द पेपर रखो और ट्राई टू रोटेट इट टू द बी बार, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट को अपने फिंगर्स को रोटेट करते हुए। तो थंब कौन सी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है? थंब विल बी रिप्रेजेंटिंग इन दिस डायरेक्शन, तो ये बनेगा मेरे पास सी बार। आया सभी को? सर आप एक बार वीडियो खोल के आपकी उंगलियों से बता दीजिए, लोग को थोड़ा समझने नहीं आ रहा था, किसी मैसेज आया मेरा पेपर। मैं करा देता हूं। सभी लोग वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर लो बेटा। Am I visible बेटा? यस सर। यस सर। आप देखो सेकंड एग्जांपल, देखो सेकंड एग्जांपल क्या था, जल्दी से देखो एक बार। वेक्टर ए बार कौन सी डायरेक्शन में था? इनवर्ट डायरेक्शन में था, ऐसा, यस ठीक सर। है। और यू आर गोइंग इन विच वेक्टर बेटा? फर्स्ट वेक्टर में, ऐसा रोटेट करो। सो थंब इज इंडिकेटिंग इन दिस डायरेक्शन, नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है ना। वेक्टर ए बार इनसाइड द पेपर एंड रोटेट द फिंगर्स फ्रॉम ए टू बी लाइक दिस, ठीक है। देन द थंब व्हील इज इंडिकेटिंग इन विच डायरेक्शन बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। आया सभी को? दिस इज Yes, योर sir. इनवर्ट, Yes, sir. rotate from your A bar to B bar, thumb is in this direction. कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा? नीचे के डायरेक्शन में, फोर्थ क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा होता तो पूरा वाई एक्सिस पे होता। ये थोड़ा क्रॉस है ना, ए बार से बी बार तक जा रहा है, थोड़ा क्रॉस है, तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? देखो फोर्थ क्वाड्रेंट पे जा रहा है, दिखाई दिया? यस सर। और एक एग्जांपल दूं? यस सर। यस सर। एग्जांपल नंबर 3 देख लो। ये मेरे पास वाई एक्सिस है और ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा। अब मान के चलो मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर मैं लिख ले रहा हूं इस तरह से। ये हो गया वेक्टर, मान के चलो बी बार, और यहाँ पर एक वेक्टर है, मान के चलो ऐसा डॉट ले रहा हूं मैं। दिस वन इज लाइक दिस एंड दिस वन इज ए बार। इसका मतलब क्या बेटा? डॉट का मतलब क्या? ए बार Towards- बाहर निकल रहा सर। हाँ, डॉट मतलब बाहर, तो फिंगर्स आप पूरे अपने पास बाहर रखो और रोटेट इट फ्रॉम योर ए बार टू बी बार, ए बार टू बी बार। तो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, दिखाई दे रहा? सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा सर। देखो सभी लोग को आया? फिंगर्स पूरे बाहर ले लो बेटा एंड रोटेट फ्रॉम योर आउटवर्ड डायरेक्शन टू द बी डायरेक्शन, सो दैट विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सेकंड क्वाड्रेंट। यानी इसका रिजल्टेंट जो है ना यहां पर आ जाएगा, तो दिस विल बी द रिजल्टेंट, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर सी बार। क्लियर है? यस सर। आया सभी को? आया सर, आया। नहीं आया अभी, नहीं आया अभी, ठीक है। चलो और एक कराता हूं, आप लोग ट्राई करो। अब देखो मान के चलो एक वेक्टर है ए बार, एक वेक्टर है बी बार, इसका डायरेक्शन बताओ। ए बार क्रॉस बी बार कैसा होगा? ए के पास फिंगर्स रखो, बी के पास जाओ, ए के पास फिंगर्स रखो, बी के पास जाओ। थंब कहां पर जा रहा है? सर अंदर को जा रहा सर। अंदर को जा रहा है। सभी को आया? तो मैग्नेटिक फील्ड जो रिजल्टेंट आएगा सी बार अंदर जाएगा। आया सभी को?
आया? सर अब मैं बोलता हूँ सर, मैं अब बाकी के लोग, अरे बेटा बात करो, अगर नहीं आ रहा तो और 2 दिन कराता हूँ। पहले आप लोग राइट हैंड को समझो, डायग्राम को छोड़ो, पहले आप अपना राइट हैंड को समझो कि कहां से कहां पर रोटेट हो रहा है। तो फिंगर्स क्या देंगे, 2 वेक्टर्स रिप्रेजेंट करेंगे, और थंब कभी भी आपको डायरेक्शन देगा। फारूक, फारूक है नहीं है? हाँ, क्लास में बैठे हुए हैं सर उन्हें, कहाँ है क्लास में? वो ऑडिटोरियम में। तुम कहाँ है घर पे हूँ। फारूक? मुना, क्या हुआ? सर वहां से नहीं खोल सकते सर माइक? मैं खोल सकते नहीं? हाँ। वीडियो तो ऑन करके बोलो यार, जरा वीडियो तो खोल सकते हैं ना, वीडियो में आने होता शायद। नहीं होता सर, वीडियो भी ऑन नहीं होता, माइक भी ऑन नहीं होता, खाली आप वहाँ पे टीवी के ऐसा दिख रहे सर आप खाली। क्या बोले? सुमैया, समझ में आया? नहीं आता। साजिद घर बैठा हुआ है। तो वेक्टर्स ए बार से लेके बी बार, बेटा टेक योर फिंगर्स फ्रॉम योर ए बार टू बी बार, फिंगर्स ए बार टू बी बार। मैं एक बार वीडियो खोल के फिर एक बार बता देता हूं। देखो, अब देखो, वेक्टर इस डायरेक्शन में था बेटा, isn't it? So वेक्टर इस डायरेक्शन में था, ए बार से बी बार को जाओ, तो थंब कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? इनसाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा? So if I am taking this one in this direction beta right now, so what I can do right now is can keep the given conditions. ठीक है, तो ये मेरा एक डायरेक्शन है मान के चलो, ठीक है। तो यहां पर अपने पास एक कंडीशन है, तो ये हो गया वेक्टर का डायरेक्शन, नहीं दिखाई दे रहा, चलो ओके। सो वेक्टर ए बार है, सो वेक्टर ए बार से बी बार को जाओ बेटा, वेक्टर ए बार से बी बार को जाओ, द थंब विल बी रिप्रेजेंटिंग द इनसाइड डायरेक्शन, थंब विल ऑलवेज गिव्स मी द डायरेक्शन। ए बार से बी बार को आप लोग अपने फिंगर्स को पलटाना है, तो थंब जो डायरेक्शन में रहेगा दैट विल बी गिविंग यू द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? यस सर। और एक एग्जांपल देता हूं, देखो आप लोग ट्राई करो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। मान के चलो ये मेरा y एक्सिस है और ये वाला आप लोग का x एक्सिस है, और मेरे पास 2 वेक्टर्स है मान के चलो। एक वेक्टर इस तरह से है यहाँ पर, ये हो गया बी बार, और एक वेक्टर इनसाइड है मान के चलो, यहाँ पर कहीं पर दिया मैंने, दिस इज क्रॉस एंड ए बार। इसका मतलब क्या? वेक्टर इज इनसाइड, Yes, sir. and you are rotating the vector from a bar to b bar। अब फिंगर्स आप इनटू द बोर्ड रख लो या इनटू द पेपर, जहां पर भी आपने क्रॉस किया ना, उसके अंदर आप लोग अपने फिंगर्स पॉइंट करो, एंड राइट नाउ रोटेट फ्रॉम योर ए बार टू बी बार। तो थंब कौन से डायरेक्शन में जा रहा दिखाई दे रहा? Third quadrant. ए से लेके बी तक, fingers into the paper and you need to rotate your fingers from inside to second quadrant। तो थंब कौन से क्वाड्रेंट में दिखाई दे रहा? Third quadrant में दिखा सर। किसमें? Third. हाँ, Third में सर। थर्ड में कैसे दिखता है बेटा? आप फिंगर्स बाहर ले रहे हो, फिंगर्स अंदर लेना है ना, क्रॉस है। फिंगर्स को आप अपने स्क्रीन के अंदर डालो या पेपर पे अगर ड्रॉ कर दिया क्रॉस, तो उसके अंदर डालो, कोऑर्डिनेट्स डालो, एंड ट्राई टू रोटेट फ्रॉम योर ए बार टू बी बार। तो थंब कौन से कोऑर्डिनेट में जाते हुए दिखाई देगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हुए दिखाई देगा। यहां पर आएगा इसका रिजल्टेंट, तो ये हो गया सी बार। आया? आया? यस सर। नहीं आया अभी? ठीक है चलो,
आप लोग लिख तो सही ले लो, जब मैं आ रहा हूं तो आप लोग मेरे से एक बार पूछ सकते हो, बेसिकली आई कैन हेल्प यू आउट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक वेक्टर है डॉट। डॉट मतलब क्या, बाहर, एंड देयर इज एन अनदर वेक्टर राइट नाउ हियर, दिस वन इज योर बी बार। तो कौन से डायरेक्शन में आ रहा बता, रिजल्टेंट ए बार क्रॉस बी बार क्या देगा, ए बार क्रॉस बी बार क्या देगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट देगा सर। वेरी गुड। सो फिंगर्स को आप लोग बाहर ले लो, फिंगर्स को आप बाहर ले लो एंड ट्राई टू गो इन दैट गिवन कंडीशन, तो आपको आराम से निकल जाएगा। देखो फिंगर्स ऑफ राइट हैंड के फिंगर्स लो, ट्राई टू गो फ्रॉम योर आउटवर्ड डायरेक्शन टू बी। तो थंब कौन से डायरेक्शन में जाएगा बेटा, थंब विल बी गोइंग इनटू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आया सभी को? यस सर। ठीक है, सो यहां पर हो गया इसका रिजल्टेंट, तो ये हो जाएगा सी बार। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं आप लोग को छोड़ रहा हूं, आप लोग सभी लोग प्रैक्टिस करो। अगर नहीं हो रहा है तो वहां पर कोई बच्चे आ रहे हैं तो उन लोग को पूछ लो एक बार, फहद वो लोग आ रहे हैं तो उन लोग से हेल्प ले लो। नहीं, अगर हेल्प भी ले रहे हो तो पहले आपका ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन क्लियर होना। अगर आपको डायरेक्शन क्लैरिटी नहीं है देन प्लीज ट्राई टू गो थ्रू द वेक्टर्स का चैप्टर, वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट एक बार देखो, डायरेक्शन कैसा निकाल रहे थे हम लोग ए बार क्रॉस बी बार का, देन इट विल गेट क्लैरिटी। वरना आप लोग को इस पे करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो मान के चलो मेरे पास एक वेक्टर है यार राइट नाउ, हियर इट इज क्रॉस एंड हियर इट इज ए बार, और बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, सो दिस इज योर बी वेक्टर। इसका डायरेक्शन कहां पर आएगा, इसका डायरेक्शन कहां पर आएगा, एक मिनट बेटा, सर एक्स डैश पे आता सर। फिंगर्स आप लोग इंटू ले लो ए बार को, पेपर के अंदर आप पूरे फिंगर्स रख दो ऐसा अंदर, और ए बार से बी बार को जाओ। सर एक्स डैश पे आया सर। और एक्स डैश में मतलब दो एक्स डैश दिख रहा है ना यहाँ पर, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, नेगेटिव एक्स पे आता सर। वेरी गुड, नेगेटिव एक्स तो यहाँ पर आएगा ये, तो इसका डायरेक्शन यहाँ पर आएगा, दैट इज नथिंग बट सी बार टुवर्ड्स योर वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर है? हाँ सर। यस सर, क्लियर है सर। बहुत एग्जांपल्स करा दिया मैं डायरेक्शन के लिए। अगर आपको इसमें और कंफ्यूजन भी है तो, और आप लोग का वेक्टर्स क्लियर नहीं है सर का है, तो आप लोग एक से दो बार इसको देखो। बिफोर आई स्टार्टेड द मैग्नेटिक फील्ड मैं आप लोग को डायरेक्शन समझा रहा था कि कैसे निकालना है, सो प्लीज ट्राई टू गिव द टाइम फॉर योरसेल्फ सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। क्लियर है? यस सर। यस सर। समझ में नहीं आया ना डायरेक्शन? हो जबरदस्त समझ में आया सर। पता नहीं मेरे को, तो मेरे को तो अगर नहीं आया जबरदस्त आया, तो तुरंत आप नहीं बोल लोग एक सकते बार सर। हाथ लेके एक बार ट्राई करो बेटा, लेकिन इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली यू आस्क मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। जी ठीक सर। है, जी सर। चलो। तो दैट वाज अबाउट योर बेसिक्स ऑफ हाउ टू कैलकुलेट द डायरेक्शन इन दिस वन। तो फर्स्ट लॉ के पास जाते हैं अभी हम लोग। व्हाट इज आवर फर्स्ट लॉ? दैट इज अबाउट योर बायो-सावर्ट्स लॉ। बायो-सावर्ट्स लॉ, बायो-सावर्ट्स लॉ। दो डिफरेंट साइंटिस्ट है बेटा, दो भी डिफरेंट साइंटिस्ट है। दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेटा। कैन से दैट दिस इज योर फंडामेंटल, this is your fundamental law of electromagnetism, electromagnetism। okay? तो अब इन दोनों ने क्या बोला कि मैग्नेटिक इंडक्शन जो भी हो रहा है बेसिकली, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन that is nothing but of your dB bar, magnetic induction dB bar, due to a current carrying element, a current carrying element जिसको हम लोग करंट एलिमेंट बोलते हैं बेटा, that is product of I into dl, small length of the current into current is known as what? current element। करंट एलिमेंट किसको बोलते हैं बेटा, यहाँ पर समझो I into dl को करंट एलिमेंट बोलते हैं। तो इसके अंदर हम लोग एक वायर ले रहे हैं इस तरह से, ऐसा मान के चलो, या कुछ वायर ले लो ऐसा बेसिकली ऐसा,
और ये इसका एक्सिस। ओके, ठीक है। सो ये ऊपर चले जाएगा, तो ये इसका एक्सिस, इसमें से करंट जा रहा है, मान के चलो आई एम्पियर, ये टर्मिनल एक्स है, ये वाई है, इसमें से करंट जा रहा है, तो ये जो है ना इसके साथ एक एंगल बना रहा है, दैट इज नथिंग बट ऑफ ए स्मॉल एंगल थीटा, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, तो दिस इज योर करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट क्या है बेटा, यहाँ पर फिर से एक बार लिख लेता हूँ मैं, करंट एलिमेंट is nothing but product of current into small length. I into dl is known as of your current element. I into dl is known as of your current element part affiliation. Biot-Savart's ने क्या बोला कि whatever the magnetic induction we are talking about for your current carrying of your wire part affiliation, so that is directly proportional to your strength of your current. यानी जो strength आप current को दे रहे हो ना, उसके directly proportionality condition में जाएगा बेसिकली। तो मान के चलो अगर मैं डायग्राम लिख रहा हूँ मैं इसके लिए, ये वायर जो है ना ऐसा, ठीक है। तो इसमें से करंट जा रहा है यहाँ पर, मान के चलो थोड़ा करंट ले रहा हूं मैं आई, तो सेम अमाउंट ऑफ करंट भी यहाँ पर जा रहा है आई। अब इसका ये एक एक्सेस है, मान के चलो यहाँ पर मैं एक एक्सेस ले रहा हूँ, ओके। और इस पॉइंट से समवेयर हियर एक पॉइंट पी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए विच वाज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो इसके अंदर जब करंट जा रहा है तो देखो यहाँ पर करंट होगा, एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ इसके अंदर, दिस वन इज अ स्मॉल एलिमेंट, तो ये हो गया dl, और इसमें करंट भी है, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर आई, सो इनटू आई कर रहा हूं, सो आई इनटू dl इज नथिंग बट व्हाट फॉर मी, योर करंट एलिमेंट। इस करंट एलिमेंट के वजह से एट पॉइंट पी मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है ना, तो वो आ जाएगी dB। अब उस लोग ने क्या बोला, किसके, इस करंट कंडक्टर, ये करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर अगर मुझे एक पॉइंट पी के पास मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो दे टोल्ड दैट दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सो आई कैन से दैट हियर according to Biot-Savart's law, according to Biot-Savart's law, the magnitude of magnetic field, the magnitude of magnetic field, the magnitude of your magnetic field dB bar is number one directly proportional to, is directly proportional to the current I, current I through the conductor, through the conductor. Yani dB is directly proportional to the current. That was the first statement what they had given. And they also told that the magnetic field dB is directly proportional to, it is also directly proportional to the, it is also directly proportional to the length of current, directly proportional to length. यहाँ पर length कितना ले रहा हूँ मैं, dl ले रहा हूँ ना, so length of the current element, length of your current element, यानी dB is directly proportional to your length dl part of equation. And they also told that it is also directly proportional to, it is also directly proportional to sin theta, directly proportional to sin theta, yani dB is directly proportional to your sin theta. And fourth one is they told is it is inversely proportional to, it is inversely proportional to the, inversely proportional to the square of the distance, square of the distance r of the point P from the current element, from the current element, yani dB is inversely proportional to your r square. Okay, so what are the statements you see right now? Once again, according to your Biot-Savart's law, the magnitude of your magnetic field,
dB bar is directly proportional to your current beta, is directly proportional to the length of the current element, directly proportional to your sin theta, and it is inversely proportional to the square of the distance between them. This were the four statements which they have been given. हम लोग इसका proof नहीं जा रहे हैं बेटा, because that is not in the syllabus, so don't bother about the proof. You just talk about the statement given by the Biot-Savart's law. Biot-Savart's law says that the magnetic field due to the small element of this conductor, हम लोग पूरे कंडक्टर के बारे में भी नहीं बात कर रहे, ये X है और ये Y है. We are not talking about total conductor. We are talking about only the small part of your conductor. तो small part of a conductor के लिए क्या करेंगे हम लोग? Differentiation करेंगे. पूरा होना बोले तो क्या करेंगे हम लोग? Integration करेंगे. तो we are talking about only the small. अगर ये मेरे पास मान के चलो 100 सेंटीमीटर है, तो मैं 1 सेंटीमीटर के बारे में ही बात कर रहा हूँ. So what is this 1 centimeter of the wire will be producing how much amount of magnetic field at a point P, which is making an angle theta with the axis part of relation. तो उसके लिए वो लोग ने क्या बोला, ठीक है, तो आप लोग एक स्टेटमेंट लिख लो. तो वो लोग ने बोला कि ये मैग्नेटिक अगर निकालना है आपको, तो इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ करंट. यानी आप करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, अगर करंट घटाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा. एंड दे आल्सो टोल्ड दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ करंट. यानी जितना लंबा कंडक्टर उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पार्ट. एंड इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल. यानी जितना वैल्यू ऑफ द साइन मैक्सिमा होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड आपको ज्यादा बनते जाएगी. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस from the point P, and it is also inverse proportional to square of the distance. अब ये पूरे statements को अगर हम लोग combine कर रहे हैं, so combining all these four factors, so combining all these four factors, we get dB is directly proportional to, पहला वाला क्या था? current, उसके बाद length, and इसके बाद sin theta, and is inversely proportional to what beta? Square of the distance. So ये था magnetic field को निकालने का mathematical formula. So dB is proportional to ideal sin theta by your r square part of relation. अब proportionality है, तो अब हम लोग को तो proportionality निकालना बहुत आसान से आता है. dB हटाओ, उसकी जगह proportionality को निकालो, तो k लगा दिया. So it is I into your dl into your sin theta divided by your r square divided by your r square part of relation. तो ये हो गया dB. तो proportionality constant निकाला, तो क्या है अपने पास? k की वैल्यू आ गई. So k value was been found experimentally. तो लोग ने k की वैल्यू दे दिया कि k की वैल्यू इतनी होगी बेटा, k is equals to, value of your k is equals to your mu naught by your 4 pi. Mu naught is known as of your what beta? Permeability is known as of what? Permeability of your free space. Permeability of your free space. Permeable, the permission. It is allowing the magnetic lines of force to pass through the unit area is called as of your permeability. And a permission to pass the magnetic lines through the given cross section is called as of your permeability. And the value of your mu naught is 4 pi into 10 to the power of minus 7. ये experimental value है बेटा. So mu naught value is equal to how much बेटा? 4 pi into 10 to the power of minus 7. तो k की value कितनी आ जाएगी जब? K is equals to mu naught by 4 pi. That is equals to mu naught value is 4 pi into 10 to the power of minus 7 divided by 4 pi. A 4 pi चले गया, तो k value will be equal to 10 to the power of minus 7. तो ये हो गया k की वैल्यू. ये आप k की वैल्यू ये भी डाल सकते हो. ठीक है सर, यूनिट्स क्या है उसके सर? मैं बताता हूँ बेटा, अभी यूनिट्स में निकालने का मेथड बताता हूँ आपको. ठीक है, यस सर. Yes, sir. k की वैल्यू डाल दो आप लेके जाके. एक k की वैल्यू इस फॉर्मूले में डालो, एक k की वैल्यू लेके जाके इस फॉर्मूले में डालो, तो वी विल बी गेटिंग द फॉर्मूला एज राइट नाउ. हाउ मच बेटा? कैन एनीवन टेल मी हाउ विल बी गेटिंग द फॉर्मूला? dB bar is equals to mu naught by 4 pi, mu naught by your 4 pi into I dl into sin theta divided by your r square divided by your r square. This is your Biot-Savart's law. इसका यूनिट क्या है बेटा, कोई बता सकता है क्या? यूनिट इज नथिंग बट व्हाट? टेस्ला. मैंने बोला था ना मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है मेरे पास? टेस्ला. इट इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? टेस्ला पार्ट ऑफ रिलेशन. अब ये कांस्टेंट है ना, k की वैल्यू निकालो. तो k की वैल्यू अगर मुझे निकालना है, तो k की वैल्यू में करंट का मुझे यूनिट मालूम है, लेंथ का यूनिट मालूम है, r की भी यूनिट मालूम है मुझे, sin थीटा का तो कोई यूनिट नहीं होता, dB का भी यूनिट वैल्यू है. तो आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ योर k की यूनिट. यूनिट्स ऑफ k, यूनिट्स ऑफ योर k कौन बता सकता है? k is equals to कितना आएगा बताओ जल्दी से. सो k वैल्यू विल बी इक्वल टू, k वैल्यू का पहले फॉर्मूला लिखो, dB into your, this will become for me your r square
divided by current, that is nothing but of your I into your DL into your sin theta. So dB का यूनिट कितना है, टेस्ला, इंटू R का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय करंट किस में मेजर करोगे आप, एम्पियर में, सही हो गया, एम्पियर इंटू DL को भी किस में मेजर करोगे आप, मीटर में मेजर करोगे, इसको तो यूनिट नहीं है, तो ये स्क्वायर ये मीटर चले गया, तो यूनिट कितना बना बेटा, टेस्ला को मैं कैपिटल T से लिख लूं, मीटर को ऐसा लिख लो, ये हो गया एम्पियर, तो बना यूनिट मेरे को टेस्ला मीटर, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, आया सभी को? Yes, sir. Is the unit clear for everyone? Yes, sir. Okay. So K की यूनिट क्या है बेटा, यूनिट ऑफ द K is टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टकला मीटर पर एम्पियर भी बोल ले, so टेस्ला मीटर पर एम्पियर और टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, that is the unit of your K. Is it clear for everyone? Is Yes, it clear sir. for everyone? यूनिट आ गया सभी को? चलो, Yes, sir. ये अपना फॉर्मूला था बेटा, this one was our basic formula. So dB is equals to how much for me, dB is equals to mu naught by 4 pi into IDL into sin theta by R square. This is the first formula in the magnetic effects of current where we'll be trying to do the problems, and unit of that one is nothing but a Tesla, and K की mu naught की value, mu naught is known as of what, permeability of a free space, and the value of that one is mu naught is equals to 4 pi into 10 to the power of -7, and K की value हो गई 10 to the power of -7 अगर simplify कर रहे हो तो basically. See this equation can I even write like this beta, see here, we can write the Biot-Savart's law as, देखो dB is equals to, मेरे पास क्या फॉर्मूला था, mu naught by 4 pi into I into DL into sin theta divided by R square, ये फॉर्मूला था मेरे पास। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाई बाय R कर रहा हूँ, R डिवाइडेड बाय R, तो अब ये कितना बनेगा, कोई बता सकता है क्या, dB बार इज इक्वल्स टू, ये बना mu naught by 4 pi into, ये बना I into your R, ये R यहाँ पर आ गया, into DL into your sin theta, ठीक है ना बेटा, सो डिवाइडेड बाय, ये बना R square into R, कितना बना बेटा, R cube, so I can write even like this, so dB bar is equals to your mu naught by 4 pi I into R into DL into your R part of relation, ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा कर देता हूँ, ठीक है, I into ये हो गया DL into यहाँ पर R, ये R मैंने अंदर ले लिया, ये R यहाँ पर आ गया तो DL से मल्टीप्लाई होगा, so this one is nothing but of your DL into your R into your sin theta divided by R cube, ये समझ में आया सभी को, कैसे लिखा मैंने, ये समझ में आया बेटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला था अपने पास, तो मैंने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लिया R, तो ये R इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये R इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो R क्यूब में आ गया, समझ में आया? Yes, sir. हम लोग को वेक्टर्स में एक फॉर्मूला था, याद है, A बार क्रॉस B बार इज इक्वल्स टू मॉड A मॉड B इनटू कितना, A बार क्रॉस B बार इज इक्वल्स टू कितना, sin थीटा, तो यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है क्या, इसके कुछ सिमिलरिटीज दिख रहे हैं क्या, देखो यहाँ sin थीटा है, B के जगह R है, A के जगह L है, यानी A भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, A भी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं क्या, तो क्या बन जाएगा, ये हो गया dr बार इंटू योर R बार इंटू योर sin थीटा, कैसे लिख सकता हूं मैं, दिस कैन रिटन एज ऑफ योर व्हाट, dr बार, सॉरी DL है ना, सॉरी वो L है ना, ये L है, ये L है, सो ये हो जाएगा मेरे पास DL, तो ये हो गया DL बार क्रॉस, ये हो गया R बार, लिख सकता हूं क्या, DL R into sin theta can be written as cross product, so that can be written as of what, DL bar cross R bar, लिख सकता हूं ऐसा मैं, Yes, sir. like this. So Yes, this sir. will become for me how much, can anyone tell me, so this will become for me dB bar is also equal to mu naught by over 4 pi into current as it is, अब ये पूरा टर्म जो है ना I can write in vector form, तो ये हो गया DL बार क्रॉस यूवर R बार,
divided by RQ. So this is your standard formula for magnetic field in terms of vectors. In terms of vectors में लिखना है, तो इसको हम लोग को याद रखना है. This is very 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 important formula in terms of your vector. ठीक है ना? That means I can say that the direction of dB bar is in the direction of the vector dl bar cross r bar. तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला आ गया ना बेटा. अगर डीबी की डायरेक्शन होना है मतलब डीएल बार क्रॉस आर बार जो डायरेक्शन में देगा रिजल्टेंट इसका, वही डायरेक्शन में अपने को मैग्नेटिक फील्ड आएगा. क्लियर है? इज इट क्लियर? So direction of your dB bar is in which direction beta? The direction of your dB bar is in the direction of your dl bar cross b bar, and it is given by what beta? Which rule? It is given by your right hand screw rule or thumb rule or screw rule. Right hand screw rule भी बोल सकते हैं. Is it clear for everyone? डायरेक्शन ऑफ डी बार कौन सी डायरेक्शन में आएगा बेटा? डीएल बार के डायरेक्शन में आएगा. अब इसमें डीएल कहाँ है, आर कहाँ है, ये देख लेते हैं पहले. चलो डायग्राम को वापस आओ. बेसिकली तो ये हो गया मेरे पास आर बार सोल्डरी पे, और ये हो गया डीएल. तो डीएल को कौन सा वेक्टर है बेटा? डीएल कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है. देखो मैं यहाँ पर थोड़ा इसको ऐसा कर देता हूँ. तो ये डायरेक्शन में अपने पास डीएल है. ये है डीएल. यहाँ तक हो गया ये डीएल बेटा, और यहां से यहां तक ये हो गया आर. इसकी डायरेक्शन बता सकता है कोई? डीएल बार से आर बार को आना है, तो थंब कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? देखो आप डीएल बार से आर बार, हाँ इनसाइड जा रहा है. यानी पॉइंट पी मैग्नेटिक फील्ड कहां पर आएगा? इनसाइड आएगा. आया सभी को? आया सर. नहीं आया तो एक से दो बार वीडियो रिपीटेडली देखो, समझ में आएगा. डायरेक्शन वहां को भी समझ में नहीं आ रहा तो वहां पर बैठे किसी को पूछ लो, क्लैरिफाई कर लो डाउट्स. फिर भी समझ में नहीं आ रहा, देन व्हेन आई कम टू द कैंपस यू ट्राई टू आस्क मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू द डायरेक्शंस इन नीटली. लेकिन सभी लोग इस टॉपिक की नोट्स लिखना नेक्स्ट टाइम जब मैं दिखाई दे रहा हूं, तो मेक श्योर दैट यू राइट द डायरेक्शंस वेरी क्लियरली. समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज राइट दैट इन अ पेंसिल कि मुझे समझ में नहीं आया, एंड व्हेन आई कम बैक यू प्लीज ट्राई टू आस्क द डाउट्स. ठीक है? यस सर. तो दिस वाज अबाउट योर बायोट-सावर्ट्स लॉ का रिलेशन. अब थोड़े स्पेशल केसेस कर लेते हैं बेटा. स्पेशल केसेस. फारूक तुम ये टॉपिक से मुझे हर अपडेट दोगे. अगर टॉपिक समझ में नहीं आया यू डायरेक्टली कॉल टू मी, आई विल हेल्प यू आउट, बट यू विल नॉट से मम अगर नेक्स्ट वीक में मैग्नेटिक इफेक्ट से आपको करंट नहीं आया तो मैं तो उल्टा टांगा तो कैंपस को आके मैं बोल रहा हूँ. ये टॉपिक आज सुनो, फिर से एक बार पढ़ो एग्जाम हो जाने के बाद, एंड प्लीज इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू डायरेक्टली कॉल टू मी, यू हैव माय नंबर, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. ठीक है? स्पेशल केसेस देखो बेटा. इफ थीटा इज 0 डिग्रीज, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्रीज, सो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा की जगह 0 लिख दे तो क्या हो जाएगा? 0. तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बन जाएगा? dB इज इक्वल्स टू 0 इस फॉर्मूले में. Isn't it? ये तो साइन थीटा है ना. थीटा की वैल्यू 0, so 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग विल बिकम फॉर मी 0. 0 मतलब क्या? 0 मतलब क्या? देखो अगर थीटा 0 है मतलब ये पॉइंट कहां पर आ रहा? इसके एक्सिस पे आ रहा. तो मैंने स्टार्टिंग में लिखा दिया अगर पॉइंट एक्सिस पे है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 होगा. ठीक है ना? So on the axis it will become for me 0. That is the first point you need to remember. That means magnetic field is 0 at any point on the axis of conductor. So I can say here the magnetic field is 0 at points on the axis of the current, on axis of your current element के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0. अगर थीटा 90 है, if theta is equals to 90 degrees, यानी sin थीटा की वैल्यू कितनी है? sin 90 is nothing but 1, that is maximum.
तो dB की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा, मैक्सिमम बनेगी. This will be your maximum. And dB is perpendicular to what beta? dB is perpendicular to the plane containing the current element and to the axis part of a relation. Clear है सभी को? Is it clear for everyone? When it is maximum, when it is minimum, theta is 0, Yes, it is sir. minimum. And when it is theta is 90 degrees, magnetic field is becoming for me maxima part of a relation. Is that clear? Yes, और एक sir. पॉइंट लिख लेता हूं बेटा, छोटा सा स्टार मार्क डाल के. If the length or current in this one is 1 ampere, करंट कंडक्टर के अंदर मान के चलो 1 एम्पियर है, लेंथ इज नथिंग बट इक्वल टू 1 मीटर, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज. सो 90 डिग्रीज होगा मतलब, so sin 90 will become how much for me, या sin theta will become how much for me, 0. sin theta will become for me how much for me, 1 maximum value. then dB की वैल्यू कितनी बनेगी बेटा, dB is equals to your mu naught by 4 pi into this one is IDL into sin theta डिवाइडेड बाई यूर आर स्क्वायर. पूरे के वैल्यूज डाल दो इसके अंदर, कितना बन रहा है देखो जल्दी से. तो ये बनेगा मुझे dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू करंट कितना है 1, DL कितना है 1, साइन 90 कितना है 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कितना है 1 स्क्वायर 1, यानी dB बार इज इक्वल्स टू योर कितना बेटा. So dB is equals to how much beta? dB is equals to your mu naught by your 4 pi. Yani that will be equal to how much beta? 4 pi into 10 to the power of minus 7 divided by 4 pi. A 4 pi cancel. तो ये बना कितना 10 to the power of minus 7 Tesla. That means 1 Tesla is how much for me? So I can write here definition right now. 1 Tesla is equals to 1 Tesla. One Tesla is 10 to the power of 7 times the magnetic field. 10 to the power of 7 times the magnetic field produced by a conducting wire. Produced by a conducting wire. Produced by a conducting wire of length कितना बेटा? Of length 1 meter. Length 1 meter and carrying current of 1 ampere. Current of your 1 ampere. Current of 1 ampere at a distance. At a distance of 1 meter. At a distance of 1 meter from it and perpendicular to it. And perpendicular to it. ठीक है ना. So 1 Tesla is how much beta? 1 Tesla is 10 to the power of your 7 times the magnetic field produced by a conducting wire of length how much for me? 1 meter. Current is 1 ampere. When theta is 90 degrees, then the magnetic field will be equal to how much for me? 10 to the power of minus 7. And it is perpendicular. Perpendicular क्यों देखो बेटा जल्दी से डायग्राम में. ये देखो लेंथ ऐसा है, आर ऐसा है, इसके मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है ना बेटा. इनसाइड मतलब क्या, इसको परपेंडिकुलर है, इस वायर को भी परपेंडिकुलर है. सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड टू द डीएल, परपेंडिकुलर टू द डीएल एंड परपेंडिकुलर टू योर आर पार्ट ऑफ रिलेशन. सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड हियर राइट नाउ बिकॉज़ द डायरेक्शन यू आर टेकिंग फ्रॉम डीएल बार क्रॉस टू आर बार. अगर डीएल बार क्रॉस आर बार अगर आप रोटेट कर रहे हो फिंगर्स, यू कीप इन द डायरेक्शन ऑफ एरो मार्क ऑफ योर डीएल and rotate from your DL to your R. So thumb will go inside. So magnetic field is your inside. So Biot-Savart's law का जो formula बन रहा है अपने को for the calculation, what is our formula बेटा? dB is equal to mu naught by 4 pi IDL or IDL into your sin theta divided by R square. Divided and multiplying by R कर रहे हो तो dB is equal to mu naught by 4 pi I into DL bar cross R bar divided by your R cube part of relation. Is it clear for everyone? यहाँ तक समझ में आया सभी को? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. So this was about your introduction of your magnetic field part of relation. I think you have exam in afternoon. So I'm stopping this lecture here right now. If you go through this lecture once and twice, and if you are having any doubts tomorrow before I start the section, you please let me know. I'll try to help you. ठीक है? Yes, sir. ठीक है बेटा. Bye. Thank you, sir.